Good morning, children. This is class 5, value education. Children, this is first chapter because it is a big chapter. So, last week I could not take the class because of the holiday. So, this class, there was some gap in between. So, today I am starting this chapter from here, this point, from where I had left last time. And in this chapter we are talking about anger management. Through this lesson we get some tips how to manage. I had explained last time also that anger is an emotion which comes automatically or all of a sudden. So but it is not good to be very angry or doing some actions or some shouting or some other things which is not sensible act. So now we are going to discuss about some techniques, how if you feel angry then how you can, what activities you can do to remove your anger, to change your mindset for some time. Once that you will pay attention on some other thing, then definitely the feeling of anger will go out of your mind and you will feel yourself in a different mood. Okay, so here we will discuss, in this video we will discuss about few things which are given by the writer who has prepared this lesson. Now I am reading from here. Before you react, think of the consequences that your reaction will cause. You might not want to face the consequences of things done when in anger. इसका क्या मतलब है कि जब आप रिएक्ट करते हो, गुस्से में रिएक्ट करते हो किसी भी तरीके से, तो आप कुछ भी ऐसी एक्शन कर देते हो और रिएक्शन शो कर देते हो जो सामने आ जाता है और आप उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो उस गुस्सा करने से जो उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो आप इसको नहीं पसंद करोगे कि वो रिज़ल्ट ऐसे आए, बिकॉज दैट रिज़ल्ट, एनीथिंग विच इज़ डन इन द मूड ऑफ एंगर, द रिज़ल्ट विल नॉट बी गुड. इट विल ऑलवेज बी ए वेरी बैड रिज़ल्ट, समथिंग बैड कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स नतीजे, रिजल्ट्स. ओके, थिंक वाई यू थिंक the other person is angry. आप सोचो, if somebody is angry on you and shouting at you, so you must first think why this person is angry on you. You just try to find out the reason why that person is shouting at you and you're not liking it. You are also feeling angry because that person is angry on you. Okay, think why you are angry. Now you think why you are angry. आप सोचिए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है. ठीक है, think what will happen if you call the other person's name and just because you are angry and do not know how to manage your anger. और आप सोचिए कि क्या होगा, what will happen if you call the other person names. मतलब names means you must say something which is not good, improper words or some this sort of sentences which you should not utter from your mouth. Okay, आपको नाम मुँह से जो नहीं बोलना चाहिए वो आपके मुँह से निकल जा रहा है. ठीक है, do you know how to manage your anger. क्या आप जानते हैं और आप क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यू आर एंग्री ना, आप गुस्से में हो इसलिए आप उससे बोल रहे हो. ठीक है, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. थिंक व्हाट विल हैपन इफ you call other person's names. Yes, this is what I have explained right now. And because you are angry and do not know how to manage your anger, और आप नहीं जानते कि आपका जो गुस्सा आ रहा है उसको आप कैसे मैनेज करें, उसको किस तरह से कम करें, ख़त्म करें. ठीक है, पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज़. इसका क्या मतलब है कि आपको अगर किसी इंसान की बात, इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग एनीथिंग or you are not feeling comfortable with the behavior of any other person, so you try to put yourself in his or her place. है ना, आप ये सोचिए कि अगर वो इंसान आपसे गुस्सा कर रहा है, फिर दैट पर्सन इज़ एंग्री, तो अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप नहीं गुस्सा करते, आप एंग्री नहीं होते. इसका मतलब यही है कि उस इंसान की जगह अपने को रख के देखो. पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज़. इसका मतलब है कि आप अपने को उस इंसान की जगह रख के देखिए कि वाई ही इज़ बिहेविंग इन दैट मैनर,
अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी वैसा ही करते. यू विल फील, देन यू विल ओनली एबल टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स. ओके, थिंक हाउ वुड यू फील. सोचिए कि आप, तब आप सोचिए कि आप कैसा फील करते हैं. ठीक है. इफ़ द अदर पर्सन कॉल्ड योर नेम्स इन एंगर, अगर किसी कोई एनी अदर पर्सन हु इज शोइंग हिज एंगर ऑन यू, ही शाउटिंग और सेइंग बैड थिंग्स टू यू, तो आप ये पहले जानिए कि वाई ही इज डूइंग सो. ट्राई टू नो द रीज़न. ठीक है. एंड हियर दिस इज, अब थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. हियर इज़ व्हाट यू कैन डू. इफ़ यू आर एंग्री यू कैन डू सर्टेन थिंग्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस. नंबर 1, टेक डीप ब्रेथ. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गहरी सांस लेना शुरू करिए. ठीक है. गहरी गहरी सांस लीजिए, अपने अंदर खूब ऑक्सीजन ले लीजिए. डीप ब्रेथ कहते हैं ना कि गहरी सांस लेना, हल्की सांस नहीं, गहरी सांस लेना. देन वॉक आउटडोर्स, और घर के बाहर निकल जाइए. अगर घर के अंदर इफ़ रीज़न जो हो रहा है अंदर का, इट इज़ इनसाइड द हाउस, देन यू शुड वॉक आउटडोर. यानी कि आप घर के बाहर निकल जाइए. ऐसा होता है कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल एट वन प्लेस और यू आर नॉट फीलिंग, यू आर फीलिंग हेल्पलेस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू डू, हाउ टू रिएक्ट, देन यू शुड, इफ़ यू गो, सपोज यू आर फीलिंग सैड और you are very angry inside your house, so if you go to a park, nearby park, so there the surrounding will change and definitely your mood will also change. Your anger will run away, your anger will go in the air. Your mood will change. Okay, so it is better to go outdoor, means कि घर से बाहर चले जाइए, उस लीव दैट प्लेस एट वंस, उस जगह को छोड़ दीजिए. डेफिनेटली योर एंगर विल ऑल्सो फ्लाई इन द एयर. ओके. देन स्टार्ट सिंगिंग अलाउड. या तो फिर आप ये काम ये भी कर सकते हैं, गो इन द रूम एंड वेयर देयर इज़ नो वन एल्स, यू आर सिंगल हियर देयर अलोन, एंड यू स्टार्ट सिंगिंग अलाउड. खूब ज़ोर ज़ोर से गाना गाइए. दिस ऑल एक्टिविटीज़ कैन चेंज योर माइंड एंड एंगर विल डेफिनेटली गो अवे. देन डू योगा. योगा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. मार्शल आर्ट्स. मार्शल आर्ट्स, इफ़ यू हैव लर्न मार्शल आर्ट, मीन्स मार्शल आर्ट्स इज़ व्हाट, these all techniques which the people learn to save themselves from dangerous situations, or if anybody attacks you, then you should know that how you have to defend yourself. That is called martial arts. कि आपको, आपके सामने जो एनिमी है, जो द अदर पर्सन हु इज़ अटैकिंग यू और ट्राइंग टू कॉज यू हार्म, तो आप उसको किस जगह पे हिट करिए और कैसे हिट करिए. एंड बिसाइड यू हैव टू सेव योर सेल्फ ऑल्सो फ्रॉम हिज अटैक्स. Moving your body quickly and do not give that person a chance to hit you. So there are several techniques that is called martial arts, कि कैसे अपने को भी बचाना है और कैसे उसको धराशायी कर देना है हिट करके, कि वो इंसान जो है वो आपको किसी तरह का नुकसान ना पहुँचा पाए. दैट इज़ कॉल्ड, उसमें ये बताया जाता है मार्शल आर्ट्स में कि किन सर्टेन पॉइंट्स पे आप अटैक करेंगे जिससे कि आपके सामने वाला जो है एनिमी, और वी कैन से समबडी टू लूट यू, लूटिंग करना चाह रहा है, लूटना चाहता है, या आपको मारना चाहता है, या आपसे कुछ छीनना चाहता है, तो आप कैसे उस डिफेंड अपने को कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड मार्शल आर्ट्स. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज, या कोई एक्सरसाइज वैसी कर लीजिए सिंपल टाइप की, जिससे कि आपका योर होल अटेंशन विल बी ऑन दैट अदर एक्टिविटी. सो डेफिनेटली अगर एक नया थॉट दिमाग में आता है तो जो फर्स्ट थॉट है दैट विल गो अवे. That in this way the anger will go away and your mood will change. Okay, so this is best way कि आपको जो गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया है या आपको उसकी किसी एक्शन से गुस्सा आ रहा है, so you change, because anger cannot do any good or benefit to you. It may not cause any good, it may not give you good results. It is always harmful. So you should avoid to do. Okay, so here are some pictures are given children, and I have decided according to the action that this action is right and some actions are wrong.
So I have put a circle. In the circle I have put a tick mark or a cross mark, which I will advise you to do or not to do. Okay, so in the first picture you can see, if you are getting angry, you see the face of this child. So you start counting 10, 1 to 10. Count to 10. 1 means you start counting the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 up go to 10. Definitely when you are angry, you will forget your anger, and your mood will change. So this is good way. So I have put a tick mark here, and you also can put tick mark and cross mark in your books. That's why I have made these signs, signals or sign we can say. The second one, tear newspaper. दिस इज़ नॉट गुड. कि आपको गुस्सा आ गया तो पता चला कि आपने जो उसी सेम डे का जो नया न्यूज़पेपर तो वही आपने टीयर कर दिया. टीयर ऑफ मीन्स फाड़ देना. यू सी दैट ही इज़ हाउ ही इज़ टीयरिंग ऑफ. इसको टुकड़ा टुकड़ा करके एंड इसको फेंक रहा है, तोड़ रहा है, बिकॉज इसको कॉजिंग डैमेज है ना, पेपर को फिर वो कर रहा है. इन द अदर वे अगर आपको टीयरिंग ऑफ की हैबिट हो जाती है तो यू मे टीयर ऑफ योर नोटबुक ऑल्सो, यू मे टीयर ऑफ योर बुक्स ऑल्सो. सो दैट विल बी ए ग्रेट लॉस. सो टीयरिंग एनी थिंग इज़ बैड because you are causing harm to that thing also. Okay, so this is bad. I have put a cross mark. Then dance to music. There, yes, that is good. Dancing can refresh your mind. Your again I'll say that अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो go in the room, put a loud music if you have any music system, and you can dance. So definitely you will feel relaxed. You will forget your anger. Then we go to the next page, page number 9. 3 more pictures are here. First of all, punch a pillow. Now here also you can see that this boy is punching a pillow. एक मुक्का मार रहा है उसके ऊपर. punching means मुक्का मारा, punch मारना, you know. And he has tear of the pillow is that fiber or cotton which was inside is coming out. It means he is causing damage to the household property. घर के सामान को वो नष्ट कर रहा है. You see the condition. It means that this sign is that his mind is full of anger. So this is not good. Tearing of the thing like newspaper, तो he is tearing of the pillow also. So this is also wrong. ये अच्छी बात नहीं है. ठीक है. Now positive self talk. Yes, this is good. कि अब you go and you stand before a mirror and you start talking something good, positive, not negative, not full of anger. Positive talk means you can, for example, you can praise yourself. Up, you see your image in the mirror and you start talking to yourself. अपने से बात करिए कि how nice I am looking, how beautiful I am, how my hair are very beautiful, and my t-shirt which I am wearing is also very nice. You can praise yourself. Some with your clothes, with your looks, with your hair, or anything which you like. So positive self talk means positive talk करना, यानी अच्छी बातें को बोलना, not negative. So अपने बारे में अपने आप से बोलना. तो only you can see your image in the mirror, because in that way you will be able to see someone before you. If you see your image in the mirror, okay, because you are not finding anyone before you. And the last one photograph shows growl sound. ग्राउलिंग कहते हैं गुस्से की आवाज़, जैसे कि गुर्राने की आवाज़ जिसको बोलते हैं. ग्राउलिंग में दिस सॉर्ट ऑफ साउंड है ना. एज यू सी द डॉग्स ग्राउलिंग, व्हेन जब गुस्सा होते हैं तो वो एक तरह का साउंड निकालते हैं ना. आफ्टर दैट दे स्टार्ट बार्किंग. तो द साउंड बिफोर दे मेक, बिफोर द व्हेन दे आर एंग्री, बिफोर बार्किंग दे मेक सम सॉर्ट ऑफ साउंड ना. गुर्राना जिसको बोलते हैं ना, कि आप लोग सुनते भी होंगे और आप लोग बोलते भी होंगे कि डॉग्स जो हैं वो गुर्रा रहे हैं, मतलब कि दे आर मेकिंग एंग्री नॉइज, ग्राउलिंग कर रहे हैं करके जो करते हैं दिस सॉर्ट ऑफ साउंड. और उसके बाद दे स्टार्ट बार्किंग. सो दिस बॉय इज़ ऑल्सो मेकिंग ग्राउलिंग नॉइज and he is beating his chest also, you see. So he is causing harm to himself. Growling noise he is making from his mouth, and you can see his expression.
इन दिस फोटोग्राफ, एंड ही इज़ बीटिंग हिज चेस्ट, अपने को मार रहा है ना, इस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही इज़ स्क्रैचिंग हिज टी शर्ट. So this is also not good, because this sort of emotion can cause harm to his mental setup. Growling, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए. तो this is bad. So it is, now we will see what is written here. Remember, it is all right to feel angry. हाँ, ये तो है कि गुस्सा आपको कभी ना कभी आएगा. It is just that you need to manage your anger so that, लेकिन ये ज़रूरी है और ये अच्छा है कि आप अपने एंगर को मैनेज करिए, यानी उसको किसी तरह से रोकिए, उसको ख़त्म करिए. एंड सो दैट यू नाइदर हर्ट योरसेल्फ नॉर अदर्स, ताकि आप अपने को भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं और दूसरों को भी ना पहुंचाएं. सम पीपल डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग व्हेन दे आर इन एक्सट्रीम एंगर. दे इफ़ दे डोंट फाइंड एनीवन इन फ्रंट ऑफ देम, दे कॉज हार्म टू देमसेल्व्स. अपने को ही उठा के मार लिया, कोई चीज़ अपने को ही मार लिया, हिट कर लिया गुस्से के मारे. तो ऐसा भी ऐसे केसेस देखे गए हैं बहुत से, कि दिस सॉर्ट ऑफ केसेस कम व्हेन द पीपल हिट देमसेल्व्स. अपने आप को ही चोट पहुंचा दी. क्यों? गुस्सा निकालने के लिए कुछ सामने कोई नहीं मिला, इसलिए अपने को ही मारा, अपने को ही पीटा, अपने को ही चोट पहुंचाई, अपना सिर फोड़ लिया. सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स पीपल डू. दिस इज़ ह्यूमन बिहेवियर चिल्ड्रन, एंड पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट वेज. कोई अपने गुस्से को किसी तरह से कंट्रोल करता है, कोई नहीं कर पाता, कोई उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है, कोई मैनेज नहीं कर पाता. एंड दैट पर्सन कॉज हार्म टू द नॉन लिविंग थिंग्स. अगर लिविंग नहीं सामने आता तो नॉन दे स्टार्ट कॉजिंग हार्म टू नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज वो तो रिएक्ट नहीं करेंगी ना. अ पर्सन कैन रिएक्ट बट a living person can react, but non-living will not do any reaction. So people start causing, like as it is seen in this photographs, that tearing of the newspaper, or punching a pillow and tearing it off. So these are the things, children. So you just, from this lesson, you at least learn something, that showing anger is a very common and very emotion that comes all of a sudden, है ना. आपको कोई भी रिवर्स कंडीशंस दिख रही हैं, कोई जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, द थिंग्स आर नॉट फेवरेबल, समटाइम्स यू फील एंग्री ना. आपको एकदम गुस्सा आ जाता है कि आपके मन की बात नहीं पूरी हुई, देन यू फील एंग्री, और फिर आप स्टार्ट कर देते हैं रिएक्शन करना उसको इन अदर वे. सो हियर दे हैव गिवन यू सम एक्सरसाइज इज़ दिस, दैट दे हैव मेड सम सर्कल्स, है ना. ये सर्कल डिफरेंट साइजेस के बनाए हुए हैं. तो ये बताना चाहते हैं कि इफ़ योर एंगर इज़ बिगर देन दीज, अगर इनमें से आपका एंगर जो है उसका साइज़ अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा है, इट मीन्स कि दिस इज़ द बिगेस्ट सर्कल, है ना. तो आपका इससे भी बड़ा है तो उसको यहाँ बनाइए, इसको, ठीक है. यूज स्पेस बिलो टू ड्रॉ योर एंगर बबल, उसको यहाँ बनाइए. देन कलर द राइट साइज बबल, जो आपको आपके साइज़ का बबल है जो आपने बनाया गुस्से में, उसको कलर करिए. दैट इन द कलर एंड दैट योर एंगर इज़ टू ब्लो इट अवे. और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप उस, जैसे कि एक बबल को, एक वो बुलबुला होता है ना, उसको अगर आप हल्की सी फूंक मार देते हैं, ब्लो करते हैं मुंह से, तो इट ब्रेक्स, इट गोज़. तो आप ऐसा फील करिए कि आपने वो बबल अपने एंगर का बना लिया यहाँ पे, और आपने उसको फूंक मार के उड़ा दिया. ऑल दैट विल नॉट गो, बट इमेजिन कर लीजिए कि हाँ मेरा एंगर इतना बड़ा है, मैं इसको फूंक मार के. डोंट ड्रॉ. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको ड्रॉ मत करिए. नहीं, आपको हो सकता है लगे कि मैं फील कि हाँ मैं बना तो लूँगा, लेकिन वो मेरे ब्लो करने से, माउथ से, इट विल नॉट गो. तो आप मत करिए. यू जस्ट इमेजिन कि मेरा गुस्सा जो है इतना बड़ा है, दैट इज़ द बिगेस्ट सर्कल, देन ऑल दीज सर्कल्स, एंड यू जस्ट इमेजिन कि हाँ इतना बड़ा सर्कल, इतना बड़ा है, और उसमें एक फूंक मारिए, एक ब्लो करिए मुंह से, मतलब फूंक मारना. एंड यू इमेजिन कि आपका गुस्सा हवा में उड़ गया, आपने उसको फूंक मार के उड़ा दिया है. सो दिस इज़ द वे जस्ट टू रिमूव द, दिस इज़ ओनली द वे टू रिमूव द एंगर, चिल्ड्रन. सो दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन, चिल्ड्रन, हियर. एंड नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर, दैट विल बी चैप्टर नंबर 2. वहाँ सब स्टोरी आ जाएगी. ये तो अभी खाली एंगर मैनेजमेंट एक अलग, दिस वॉज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेसन, दैट इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो,
बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हाउ टू मैनेज थिंग्स और सम सिचुएशंस, हाउ टू हैंडल सम सिचुएशंस. So this chapter shows about this. Okay, so I think you will learn something and you will go and adopt good practices which we have studied in this chapter. Okay, thank you so much.